All right. Features of planning. So planning, obviously it gives you direction to achieve your specific objective, and it focuses on achieving objectives only, because you are doing planning to achieve your objectives. So organizations set up are basically there for some general purpose, that they want to increase their revenue, they want to increase their sales, but they need to specify that what exactly they want to achieve and what activities they need to take to achieve their specific goals. So that's why planning is very purposeful. It gives us the correct direction that we want to achieve this specific thing in future. Planning will be useless if you are not concerned with some predetermined goal. So you should be having some goal in organization, that we want to increase this much sales, we want to advertise with this much budget, we want to introduce this new rule or policy in the organization. So they are needed to be introduced with some specific objective in mind. Now planning is the primary function of management. Now every manager has to do planning at first. Before using any other function of management, every manager has to do planning in the beginning stage, because when he has a layout prepared with him, then he can organize the work within his team, and he can see if he is understaffed or overstaffed, ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, कम लोग हैं तो उनको सिलेक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, ज़्यादा लोग हैं तो फिर शायद उनको डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र देना पड़ेगा, किसी दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र, and then the manager has to motivate them so that they can work with dedication, and at the end they have to check whether they achieved their target or not. So planning is the first step, that you need some objective in your mind. So planning will lay down the base for other functions. Organizing, staffing, directing, controlling के लिए प्लानिंग सबसे पहले आता है, बाकी फंक्शंस के लिए प्लानिंग सबसे पहले आता है. तो इसीलिए प्लानिंग, we are basically repeating everything till here, we have just repeated in different sentences. So इसको प्लानिंग की प्राइमेसी भी कहा जाता है. अगेन वी आर जस्ट रिपीटिंग इन डिफरेंट सेंटेंसेस. बाकी जो फंक्शंस हैं वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, बट प्लानिंग सबसे पहले आता है. ठीक है. सो वी हैव जस्ट सेड वन सिंगल सेंटेंस इन डिफरेंट वर्ड्स इन दिस पैराग्राफ. Then planning is a pervasive function, because pervasive means something which is applicable to a specific group of people. So the players in a football team do planning, players of a cricket team does planning, a group of students do planning when they are given some task. Similarly, sales department does planning, production department does planning. So wherever a group of people will be included, there will be planning. Fine, if you want to achieve goal more systematically, right? So इट इज़ नॉट एन एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट, या फिर किसी का ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप वालों को करना है या किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को करना है. सबको प्लानिंग करनी है, सबको प्लानिंग करनी है, बट किस लेवल की करनी है वो डिफर करता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में. बिकॉज टॉप में प्लानिंग बहुत ज़्यादा होती है, मिडल में उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी टॉप में होती है, बिकॉज टॉप वालों को तो सबके लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी है, मिडल वालों को तो बस टैक्टिकल प्लान्स बनाने हैं जो कि वर्कर्स से फॉलो करवाने का काम रहेगा सुपरवाइजर्स का और फोरमैन का. प्लानिंग कॉन्टीन्यूअस काम है, एक ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ फिर दूसरे ऑब्जेक्टिव के लिए प्लानिंग शुरू हो जाती है. तो प्लानिंग एक स्पेसिफिक टाइम के लिए बनाई जाती है. एक महीने का प्लान हो सकता है, एक क्वार्टर का यानी कि 3 महीने का, या 1 साल का प्लान हो सकता है. उस पीरियड के एंड में एक नया प्लान बनाना होता है, नई रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, नई कंडीशंस के हिसाब से. तो प्लानिंग कॉन्टीन्यूअस है, ये चलता रहता है. और जो कॉन्टीन्यूटी ऑफ प्लानिंग है ये प्लानिंग साइकिल से रिलेटेड है. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फिर से प्लानिंग. तो प्लानिंग इज एन ऑन गोइंग एक्टिविटी. एक प्लान बनाया, उसको इम्प्लीमेंट करा, फिर दूसरा प्लान बनाया, उसको इम्प्लीमेंट करा, एंड सो ऑन. द साइकिल विल गो ऑन. दैट्स व्हाई इट्स प्लानिंग साइकिल. साइकिल घूमती रहती है ना, वैसे ही प्लान भी घूमते रहते हैं, बार बार प्लान चलता रहता है. एक प्लान कंप्लीट हुआ फिर दूसरा प्लान चलेगा, फिर थर्ड प्लान चलेगा, एंड सो ऑन. प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, बट प्लानिंग थोड़ी बहुत बैकवर्ड लुकिंग भी है. आप पीछे का भी देखते हो तभी तो आप फ्यूचर को फोरकास्ट करोगे, बट हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहता है फ्यूचर को देखना. ठीक है. प्लानिंग जनरली आगे को देखती है, फ्यूचर में कैसे आपको चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है. प्लानिंग का पर्पस यही होता है कि हम फ्यूचर इवेंट्स को अच्छे से मतलब मीटअप करें, इफेक्टिवली मीटअप करें, और हम बेस्ट एडवांटेज लें ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका. तो हमें फ्यूचर में देखना है, वी नीड टू लुक इन द फ्यूचर, और हमें एनालाइज करना है कि सबसे बढ़िया क्या रहेगा अचीव करना.
एंड क्या क्या आउटकम्स हैं अचीव करने के लिए, कैसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो। मतलब अगर आपको एक न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है, लेट्स सपोज अभी आप सोप बनाते हो, आपको शैम्पू इंट्रोड्यूस करना है, तो यू डोंट हैव टू थिंक कि यार शैम्पू इंट्रोड्यूस करें या फिर हम फेस वॉश निकालें, आपको शैम्पू ही निकालना है। इफ़ यू हैव थॉट अबाउट इट देन यू विल इंट्रोड्यूस शैम्पू ओनली। तो अगर कोई चॉइस नहीं है फिर आपको ऑल्टरनेट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मतलब देखो प्लानिंग की तो ज़रूरत है, मैं ऑनेस्टली बताऊँ, बट ऑल्टरनेट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो द नीड फॉर प्लानिंग अराइजेज जब ऑल्टरनेट्स अवेलेबल है। मतलब अगर शैम्पू भी बना सकते हैं, फेस वॉश भी बना सकते हैं, पाउडर भी बना सकते हैं, तो फिर हम प्लानिंग करेंगे। बट अगर शैम्पू ही बनाना है तो फिर बाकी चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। अल्टीमेटली आपको एक डिसीजन पे आना होगा। सपोज करो हमें रेवेन्यू बढ़ाना है, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम न्यूज़पेपर में ऐड दे सकते हैं अपने प्रोडक्ट का, हम टीवी में ऐड दे सकते हैं, हम डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। तो आपको ये ऑल्टरनेट्स इवेल्युएट करने और बेस्ट वाला सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो प्लानिंग में जनरली हम चॉइस करते हैं जो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं और हम एक्टिविटीज़ देखते हैं कि अगर न्यूज़पेपर में ऐड करेंगे तो इतने पैसे लगेंगे, इतना रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेड है। सेम फॉर डिजिटल मार्केटिंग, सेम फॉर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मार्केटिंग। सो प्लानिंग को रिगार्ड करा जाता है फॉरवर्ड लुकिंग। हम फ्यूचर को फोरकास्ट करते हैं, क्या क्या हो सकता है उसके हिसाब से हमें डिसीजन लेना है। फोरकास्टिंग के थ्रू हम फ्यूचर इवेंट्स को, कंडीशन को एंटिसिपेट करते हैं और अकॉर्डिंगली प्लान्स हम ड्रॉ करते हैं। प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है। आप माइंड को थोड़ा थॉट में लेके आते हो, आप सोचते हो ताकि आप फ्यूचर का सोच के एक सही से इमेजिनेशन कर पाओ और एक अच्छी जजमेंट आप ले पाओ। बेसिकली ये एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है सोचने की रेदर देन करने की। मतलब यहाँ प्लानिंग में आपको सोचना है, एक्शन लेने का काम बाद में होगा, पहले आपको सोचना है ताकि प्लानिंग से आपको पता लगे क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है। करने का काम बाद में, पहले प्लानिंग का। हाउएवर प्लानिंग में लॉजिकली सोचना है रेदर देन गेस वर्क कि चलो ऐसा करते हैं। प्लानिंग इज़ नॉट दैट, और विशफुल थिंकिंग कि मुझे ये करना है। प्लानिंग एक समझदारी और लॉजिकल डिसीजन के बाद ली जाती है। राइट, याद रखने के लिए CDFM PPF कॉन्टिन्यूस है, डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करता है, फोकस करवाता है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में, मेंटल एक्सरसाइज है, प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का, परवेसिव है, फ्यूचरिस्टिक है। फाइन, सो दीज आर द फीचर्स ऑफ प्लानिंग।